तो रिकॉर्ड टू दिस कंप्यूटर। ओके, सो हमें देखते हैं कॉन्फ़िगर एंड मैनेजिंग ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल इन पालो अल्टो फायरवॉल। सो ये जो लैब था हमने किस चीज के लिए बनाया था, रिप के लिए बनाया था। तो आई विल कीप ऑल द थिंग्स सिमिलर, ये लूप बैक एंड एवरीथिंग ये भी सेम। व्हाट विल डू, यहाँ पर हमने रिप किया था, रिप को रिमूव कर देंगे एंड विल कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ सो दैट हमारा टाइम जो है विल सेव आवर टाइम। बिफोर दैट आपको थोड़ा सा ओएसपीएफ के बारे में लेट मी गो थ्रू, नॉट इन डिटेल बट यस, like what is OSPF? This 16. So OSPF अपने आप में ही एक बड़ा राउटिंग प्रोटोकॉल से यू नो वेरी वेल। सो CCN CCNP में ये सब चीजें कवर होते हैं। Here we need to learn from the Palo Alto perspective, like how we can configure on the Palo Alto firewall. And but yes, it will try to go through like basic, like what is OSPF. So it will be brush up for you also. So OSPF is open shortest path and it is open standard dynamic routing protocols. Open standard means it is applicable for all the vendor, maybe Cisco or Juniper or other stuffs, other vendors. EIGRP is mostly Cisco proprietary, we can say, but now they have like EIGRP nowadays very less used in the productions. It is an IGP, interior gateway protocols. Interior gateway protocol means it is only run in within the AS. For example, let's consider AS100. Say, for example, we have 10 routers inside the AS100, so we can run IGP, that is OSPF protocols, routing protocols. That is called IGP, interior gateway protocols, that is used to route the information within the autonomous systems. Okay, it is a link state protocols. Link state protocol means, for example, this is router 1, router 2, router 3, 4, 5, 6. If we build the OSPF between all the router, it is going to be share all the resources to each other. Okay, that is called link state. Whatever details this router 1 has or router 2 has, all the information of R1 is going to be shared to R2. R2 has all the information is going to be shared to the R1. So that is called link state protocols. Its AD value is 110. In Palo Alto, it may be different. We'll see on web UI. It is going to use a multicast address 224.0.0.5 and 224.0.0.6 to send the updates. It depends upon the configurations. And it is going to use the cost is the metric use. So how we can calculate the cost, 10 to the power 8 divided by bandwidth. So this is the way to calculate the cost, and on the basis of that, it is going to be decide the best path to send the destination. So ये cost पर काम करता है, cost can be calculated by formula. So आप बोल सकते हो कि कैसे ये डिसाइड करेगा कि लाइक कौन सा हमें पाथ बेस्ट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, मैट्रिक में ये कॉस्ट यूज होता है, कॉस्ट का कैलकुलेशन होता है 10 to power 8 डिवाइडेड बाय bandwidth. Okay. Classless routing protocols support VLSM and CIDR and support equal cost load balancing. It is also support equal cost load balancing. It's kind of, for example, this is your destinations, and we can load balance traffic to both the destinations, we can say. So it is kind of, some traffic we can say send here, some here, kinds of load balancing. Use the concept of area to manage. So in OSPF there is concept area, so it work on the area itself and send hello packet in regular intervals. So what is day timer? 4 into hello timers. For examples, every 10 seconds it send message, hello, are you there? Are you there? If it is not going to be reply, 4 into 10 seconds means 40 seconds. 4 into 10 seconds means 40 seconds. If peer is never is not going to reply after 40 seconds, it is going to be marked as a dead. Like never is not live. Router ID play an important role in OSPF. Router ID is basically the name of the routers. We can define router ID specifically, or if you're not going to define the router ID, it is going to be take the loopback interface IP address, highest IP address as a router ID.
if loopback interface is not there, then it is going to be take the physical interface highest IP address. In company, generally we use router ID. We generally configure manually, but here it is not required. Let's work on the area concept. Area 0 is the backbone, so all the areas should be connected to the area 0. It is very, very mandatory in OSPF. And uh, some router is connected through area 0 and some other area also, that is called area border routers. And if one router is a part of autonomous system different and another router is part of autonomous system different, that is called autonomous system boundary routers. Okay, so these are the basic things we need to understand before implementing in the lab. So this is our lab. So we'll try to do first this part, and this will come under default, and then we can redistribute it from default to OSPF. So we'll see later. First we'll focus on the OSPF part. So yeah, आप यहाँ आते हैं हम लोग. So इसमें we just need to run the command no router rip. We can remove the rip and we can use the OSPF. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो थ्रू भी हो जाएगा प्रॉपर्ली. Okay, let me change the session. Okay, R1, R2. Yeah, both has been changed. Show IP interface brief. So interface अब यहाँ पे loopback is, let me just cross check, 11111 10 10 1 perfect, and you can run the command show running and pipe section and rip. Yeah, so rip is there. So what we need to do, we need to go on the configuration terminal and no router rip. We can run this no router rip, and we can go on the router 2 also. No router rip. Show IP route. So it is only directly connected one, that is 1111 10 is directly connected, 1 is directly connected. So it is working as expected. सारे remove हो गया. Show IP route. Okay, यहाँ पर भी 10 है and 20 20 20 and 22 perfect. So similarly हम क्या करते हैं, इसको नोटपैड पर बना लेते हैं प्लान. सो इट विल बी गुड फॉर अस, फास्ट रहेगा वो. ओके, सो ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर करने का कमांड क्या है स्वप्निल? राउटर OSPF ओएसपीएफ 1 कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाते 1 हैं, एंड देन व्हाट विल डू, वी नीड टू एडवर्टाइज द नेटवर्क. नेटवर्क. नेटवर्क हियर वी यूज वाइल्ड कार्ड मास्क, यू नो वेरी वेल राइट, वाइल्ड कार्ड मास्क आपको पता है या करेक्ट? हाँ हाँ. सो पहला 1.1.1 and here we can use 0 0 0 0 dot 0 0 dot 0 0 dot 0 area. and area will use 0 here, because we are considering all the part, like inside zone is the part of area 0. So here we use Okay. area 0 only, and network then 11 11, and same you can use 0 0 0, and then network 10 10 dot 10 dot dot 10 dot 10 dot 0. This will be /24. So /24 के क्या रहेगा? 0 000 255. 255 Yeah, good. area 0. Yeah, see हो गया router 1 का, and same thing we can copy and we can just do the modification in the here. Instead of 1 1 we can use here 2 2. 2 2, and here we can use
22. 22. And then this is will be same 10, 10, 10, 10, 0. Yeah. So let me just copy this and we can go on the router 1. Done. We can copy this. And we can paste in the router 2. Okay. Okay. ओके सो देखते हैं शो सो अभी नेबर एस्टेब्लिश जस्ट हुआ फ्रॉम लोडिंग टू फोल्ड सो इट विल टेक सम टाइम्स एंड उसके बाद में सारे इंफॉर्मेशन अपने को आ जाएंगे यस सो दिस इज हाउ सो वी नीड टू वेट सम टाइम्स मीनवाइल हम क्या करते हैं विल ट्राई टू लॉग इन और फॉलो द फायरवॉल लेट मी चेक द आईपी एड्रेस सो व्हाट इज द आईपी एड्रेस इस आईपी इज 1.4 दैट इज फाइन सो हमें जो पहले मिला था वही है https परफेक्ट परफेक्ट So since OSPF neighbor has been established, तो अगर आप रन करते हो show IP OSPF summary no show IP OSPF या show Neighbor OS show IP OSPF neighbor details. SPF OSPF neighbor. neighbor. So it is established and it is state is full DR and what is neighbor is our 2020. So it is taken the router ID as a loopback interface highest one is. So this is the expected one. And if you run the like show IP route, right? See, so now we have able to see like 22 and 22, and it is O means coming from OSPF. So it is working as expected. Perfect. We can check here also show IP route. So here we can see like 11 and 1 and 10 is directly connected. So and 11 is coming from OSPF and 1 is also coming from OSPF. So it is working as expected. Now we need to come to the Palo Alto and then we can come to the network in virtual router. Virtual router. Here we don't need to remove the interfaces. Okay, these are the part of our this virtual router. A static route we did not do anything. Did distribution not at the moment. Reap we need to do that. We need to just remove this and we can delete from the reap part because we are not covering reap here. So if you click OK, now it is fresh router without any configurations. Reap is done. Replace we can remove. Now we come to the OSPF here. We can enable here OSPF. Router ID we can give anything, but in company we can give as per our design. Here we can give like 7777. And here is the concept of area. This is the authentication profile. This is export. This is for the redistributed default. So इसको हम अभी देखेंगे जब हम redistribute करेंगे. Come to the area plus click plus. यहाँ पर 00 नहीं चलता है. We need to give 0 नहीं चलता है. यहाँ पर चलता है 0.0.0 in Palo Alto. We need to give 00. Type is normal. Ranges keep as it is. Interfaces we can add here.
and we can add interface, for example, Ethernet 1/1, it should be enabled, and click OK, and click OK, and then we can add interfaces, another interfaces. This is our loopback 5, and it should be passive because loopback work in the passive, so आपको passive select करना पड़ेगा, and then हमें एक और ऐड करना पड़ेगा for loopback 6 के लिए, and we can enable passive and click OK. ओके, सामने क्या किया, एरिया में गए 0 दे दिया, टाइप नॉर्मल है, ये सारे इंटरफेस द पार्ट ऑफ एपीएस। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल सेम थिंग जिससे रिप में है उसी तरह आपको करना है, सो देयर इज नॉट एनी एडिशनल थिंग्स हियर। एक्सपोर्ट रूल्स में ये तब आएंगे, फॉर एग्जांपल्स जब हम यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल यूज करेंगे इन आवर आफ्टर दिस प्रैक्टिकल्स, उस केस में यूज होगा। अभी के लिए वी आर गुड, and we are successfully advertising 3 interfaces in OSPF in area 0. This is our router ID. Click OK. And security police से भी required नहीं because both are the part of inside. So हम क्या करते हैं, इसको commit कर देते हैं, in commit here. And after that हम check करेंगे, so हमारे पास ये राउट आ जाना चाहिए, टू राउटर 1 राउटर 2 555 666, और ये तो ऑलरेडी डायरेक्टली कनेक्टेड है, सो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सो 99% completed, एंड उसके बाद में हम चेक करेंगे स्वाइप आउट करके, सो हमें वो दिखेगा। सी नेबर, एक और नेबर बन गया 77777, राइट। इफ यू रन दिस कमांड, सो दिस वन, this one. If you run this command, show IP OSPF neighbor, now we have 2 neighbor, right? And if you see, अगर हम इसमें राउट चेक करते हैं, show IP route, सामने अभी 55 भी आ गए, 66 भी आ गए, राइट। 5 भी आ गए, coming from OSPF, 6 भी आ गए, so now it is working as expected. So this is the beauty of dynamic routing protocols. यहाँ पर आपको मैन्युअली नहीं दिखा डिफाइन करना पड़ा कि ये डेस्टिनेशन पे जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप है, ये डेस्टिनेशन पे जाना है तो दिस इज द नेक्स्ट स्टॉप। नो, we just need to advertise the network in OSPF, and it is automatically decide like what is the best route, and who is the next stop. Everything is going to be decided. So IP route OSPF, if you run this command, see 222 via it is learning from 10 to 10 to 555 is learning from 10 10 10 10 100 10 10 100 is our Palo Alto firewall interface IP address. 666 is learning from the same interface. So everything is mentioned properly here, right? And अगर हम ping करेंगे तो ping भी होना चाहिए। If you ping here, for example, 55555, so it should pingable, yeah. If you ping 666, so pingable, right? So this is how we can configure OSPF in Palo Alto. So अभी कोई क्वेश्चन है तो बताओ, then we'll move on. हाँ नहीं, क्लियर है। एंड हियर आप देख सकते हो OSPF में आकर के राउट, यहाँ पर पूरा डिटेल है, राउटर आईडी, इंटरफेस है, जितने सारे इंटरफेस एडवर्टाइज है, नेबर, हमारा नेबर कौन कौन है, 11 11 20 22, कौन सा ये राउटर, ये R1 R2, क्यों 11 लिया, क्योंकि एज पर द रूल ऑफ OSPF अगर आप राउटर आईडी डिफाइन नहीं करते हो, इट इज गोइंग टू बी टेक द हाईएस्ट लूपबैक इंटरफेस एड्रेस Loop व्हिच इज back IP कॉन्फ़िगर्ड। address. या perfect, and we can close that, and now we can move over to the next. Next one is configure and manage the default routing protocol in Palo Alto Firewall. So default will see this one. How we can configure it, default. We can use that. So हमें क्या करना पड़ेगा, एक और राउटर ऐड करेंगे यहाँ पर, and we can just configure this IP address. एक चीज आपको बता देता हूँ, दिस इज, हाँ ये नेटवर्क को sure. हमने सारे OSPF में हमने एडवर्टाइज किया है, ये Okay. डिफॉल्ट राउटिंग इधर कॉन्फ़िगर करेंगे, तो आप बताओ कि ये बोथ शुड बी कम्युनिकेट टू ईच अदर और नॉट। Redistribute करना पड़ेगा ना? यस, विदाउट रिडिस्ट्रीब्यूशन इट विल नॉट कम्युनिकेट।
It will ये not. देखो, ये OSPF में एडवर्टाइज राउट है, ये डिफॉल्ट राउट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने डाला कि अगर एक डिफॉल्ट राउट डाले स्टैटिक में जाकर के, कि अगर किसी कहीं अननोन डेस्टिनेशन है, प्लीज सेंड द ट्रैफिक टू द नेक्स्ट ऑफ 30 30 30 32। यहाँ पर हम डाल देंगे डिफॉल्ट राउट टुवर्ड 30 30 30 100। सो ये इंटरफेस पिंग कर पाएगा ये सारे से, बट this cannot ping from to this subnet because these are advertising OSPF, and ये OSPF का route है, डिफॉल्ट राउट है, both are not unknown to each other we can say। उस केस में हमें Mhm. रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फ्रॉम डिफॉल्ट टू OSPF, देन वी कैन कम्युनिकेट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जोन। और अपने को एक सिक्योरिटी पॉलिसी रूल भी डालना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ इनसाइड जोन, दिस इज द पार्ट ऑफ आउटसाइड जोन। सो विल सी हाउ वी कैन डू रीडिस्ट्रीब्यूशन। सो एंड पहले डिफॉल्ट देखते हैं, एंड देन वी कैन सी उसके हमें क्या करना पड़ेगा। we need to stop for a while for this only, this for all the firewall। इसको स्टॉप करना पड़ेगा, एंड यहाँ पर हमें एक राउटर लेना पड़ेगा iOS। वी कैन 37 30 27 5 मॉडल ले लेते हैं, and we can just simply run here router 3, and that is fine, image is perfect, and we can keep everything as it is। ethernet 1/2, that is perfect, fine, and that is fine perfectly। and यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें, बट द IP एड्रेस 30 30 30 32 यहाँ डालना पड़ेगा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं 30 30 30.2/24, एंड वी कैन, इट विल नॉट टेक मच टाइम, से हमारा इस इंटरफेस का IP एड्रेस हो जाएगा। एंड एंड लूप बैक हम ले लेंगे 999 एंड 100 दैट विल बी /32। सो हम क्या करते हैं यहाँ पर 99999/32, एंड यहीं पर लिख लेते हैं अपना दूसरा क्या है 100 100 100। से यहाँ पर ही ले लेते हैं 100 100 100 यहाँ /32 का ले लेते हैं, एंड वी कैन कीप गाइस ओके। सी हमारा लूप बैक हो गया, यहाँ नाम Mhm. लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर ऑन द कॉल, सो वी आर सीइंग ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, हियर वी नीड टू गिव द IP एड्रेस, यहाँ पर दे देते हैं 30 30 30 100। इसका हम 30 30 100 कर देते हैं 30 30.100, एंड इसका /24 रखते हैं, एंड वी कैन गिव 50, एंड वी कैन मेक एज ए बोल्ड, परफेक्ट। और ये पार्ट रहेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ, यहाँ पर हम ले लेंगे दैट इज द पार्ट ऑफ, दैट इज द पार्ट ऑफ Default आउटसाइड, outside. आउटसाइड जोन, एंड आउटसाइड जोन डिफॉल्ट राउट 15, make it as bold। ठीक है, तो ये अपना ही हो गया। दिस इज द सीन, नाउ वी कैन स्टार्ट इट एंड वी कैन कॉन्फ़िगर इट, विल टेक ओनली 2 3 4 मिनट्स। इस लैब में हमारा क्या गोल है कि ये सारे एडवर्टाइज है OSPF में, बट Mhm. ये डिफॉल्ट राउट में। तो अभी जैसे ही एडवर्टाइज करोगे इसको डिफॉल्ट राउट में, यहाँ पर जाएंगे, हम कॉन्फ़िगर करेंगे होस्ट नेम, एंड वी कैन कॉन्फ़िगर IP एड्रेस एंड डिफॉल्ट राउट। IP address like loopback interface and normal interface, and we can give configure out default route here like unknown destination please send to 30 30 100। यहाँ पर भी हम सेम करेंगे टू सेंड टू द 30 30 20। तो इस केस में हमारा ये 30 30 100 ये सारे से कम्युनिकेट कर पाएगा, ये भी इससे कम्युनिकेट कर पाएंगे टिल ईयर, बट दे कांट कम्युनिकेट टू a router 1 router 2 because they are the part of OSPF। so for that we need to do redistribution, so after that we'll do redistributions। okay, ठीक है, तो इसको फटाफट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। and no, and perfect, and we can give the name here like, sorry, host name, we can give host name like Router 3. three, and इंटरफेस फास्ट इंटरनेट कौन सा इंटरफेस है 0/0, एंड IP एड्रेस इसको दे देते हैं हम
30.30.32 30.2 ये सामने दिख रहा हो तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, साथ हम कर रहे हैं सीख रहे हैं, सो इट विल गिव मोर कॉन्फिडेंस टू यू ऑल्सो। सो एंड देन वी कैन डू नो स्टड। इसी तरह कंपनी में करना रहता है, देयर इज नथिंग बिग थिंग्स, ओनली थिंग्स ही लाइक वहां पर डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको चीजें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ना, जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसेस ऑफ योर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एंड देन हमें क्या करना पड़ेगा, सो वी नीड टू कॉन्फ़िगर टू लूप बैक। सो इंटरफेस लूप बैक की 9 दे देते हैं एंड इसका आईपी एड्रेस 999 एंड /32 का रहेगा ये। एंड एक इंटरफेस लूप बैक 100 ले लेते हैं एंड आईपी एड्रेस इसका रहेगा 100.100.100.100 255.255.255. नो प्रॉब्लम्स। ओके ओके, हमने यहाँ पर फाउंड डाला, 100 की जगह यहाँ पर क्या डाल दिया हमने, double. हाँ। Okay, so now we have successfully done it. अगर यहाँ पर शो आईपी इंटरफेस करते हो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं यहाँ पर, so 30.32 999 and 100 and it is perfectly fine. Our goal is first configure default route. Default route यहाँ पर हम configure करते हैं, for any unknown destination please send the traffic to the 30.30.100 and same thing we need to do on the Palo Alto firewall. So come to the routers, go to the configuration terminals and we can configure default route, IP route, any unknown destinations, any subnet mask. Please send that traffic to the 30.30.30.100 30.30.30.100 and that is fine. So हमने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दिया एंड नाउ कम टू द पालो अल्टो फायरवॉल, और यहाँ पर आते हो सेम वर्चुअल राउटर में आना है। यहाँ पर डिफॉल्ट राउट का कोई ऑप्शन नहीं है, वी नीड टू कम इन द स्टैटिक राउट्स, क्लिक ऐड, हियर वी कैन ऐड डिफॉल्ट। ओके, कोई स्पेसिफिक 1 मिनट, ये लॉग आउट हो गया। यहाँ आते हैं वर्चुअल राउटर में, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखो कोई डिफॉल्ट राउट का ऑप्शन नहीं है, सो वी नीड टू कम द स्टैटिक राउट, हियर वी नीड टू ऐड दैट एंड यहाँ पर हम डाल देंगे नाम, वी कैन गिव नेम लाइक फॉर डिफॉल्ट राउट। इसी तरह कंपनी में भी डिफॉल्ट राउट को करना है, डिफॉल्ट राउट। हियर डेस्टिनेशन इज अननोन, सो वी कैन गिव 0000/0 000. या एंड व्हाट इज द नेट इंटरफेस, इंटरफेस विल बी Ethernet 1/2। अभी यहाँ पर इंटरफेस क्यों नहीं दिखा रहा, बिकॉज हमने इंटरफेस अभी कॉन्फ़िगर नहीं किया, जो हमने न्यूली एडेड किया। सो कम टू द इथरनेट, कम टू द इथरनेट 1/2, इसका आईपी हमें 30.30.100 देने हैं, सो वी कैन गिव हियर, इट इज अ पार्ट ऑफ लेयर 3 एंड दिस इज द पार्ट ऑफ वर्चुअल राउटर्स जो हमने अभी क्रिएट किया, वर्चुअल राउटर 1, दिस इज द पार्ट ऑफ, वी कैन क्रिएट, दिस इज द पार्ट ऑफ आउटसाइड जोन, वी कैन गिव हियर outside and layer 3, perfect. So this is the part of outside and here we can give the IP address like 30.30.30.100, so we can give here like 30.30.30.100 and it should be /24। ओके, एंड यहाँ पर हम मैनेजमेंट प्रोफाइल पे अटैच कर देंगे फॉर पिंग पर्पज के लिए, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। परफेक्ट, एंड अभी तो सही दिख रहा है या, सो पिंग इज इनेबल, इंटरफेस इज कॉन्फ़िगर, परफेक्ट। Now come to the virtual router and come here and go to the static route here. Click on add. You can give name here default as route. Destination is we are not sure. We are adding default route here /0 डालने का. Now interface should be reflect here because
दिस इज द पाथ ऑफ इथरनेट 1/2। तो ये ट्रैफिक किस इंटरफेस से जाना चाहिए? दिस इंटरफेस से। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट होप? नेक्स्ट होप वी कैन गिव आईपी एड्रेस लाइक for unknown destination, please send the traffic to the 30 30 30 30 32. 30 dot. Yeah. So 30 30 30.2. This is your next hop. And we can keep as it is, everything as it is, and we click OK. And then we can commit it. So इसको commit होने के बाद में we'll try to ping it. We'll try to ping from this firewall to this router 3 IP like 999 900 100. It should be pingable. For router 3, we can only ping 30 30 100. But if you want to ping from our router 1 to router 3, it should not ping you because these are advertised in OSP. Okay, so let me see if it is completed. Palo Alto को meanwhile हम login कर लेते हैं 192.168.137.104. Okay, let me increase the size here. ठीक है, अगर हम पिंग करते हैं यहाँ पर पिंग में अगर सोर्स से लेते हैं 30 30 30 30.100 लेते हैं एंड अगर होस्ट में आप लेते हो फॉर एग्जांपल वी हैव लूपबैक 9999 सो नाउ इट इज पिंगेबल। पिंगेबल है, परफेक्ट। अगर हम पिंग करते हैं सेकेंड लूपबैक 100 100 100 100, ये भी पिंगेबल है, परफेक्ट। अब आप इस राउटर पे आते हो, अगर इफ यू कम टू द राउटर 3, राउटर 3 पर अगर हम आते हैं यहाँ पर, यू कम टू द राउटर 3 हियर, राउटर 3 ऑलरेडी यहाँ पर है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आई थिंक। मीनवाइल अगर आप इस राउटर पे आकर देखोगे, इफ यू कम टू दिस राउटर राउटर 1, अगर आप चेकोगे सो आईपी राउट, तो राउट आपको नहीं दिखेंगे। सो आईपी राउट आपको दिख रहेंगे क्या? 99 और 100 का दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, बिकॉज देज आर द पार्ट नहीं. ऑफ ओएसपीएफ। हम इसको ओएसपीएफ में एडवर्टाइज किए हैं, देज आर एडवर्टाइज इन डिफॉल्ट राउटिंग। सो फॉर दैट वी नीड टू यूज रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले टेस्ट कर लेते हैं, देन वी कम टू द सी द रीडिस्ट्रीब्यूशन पार्ट। यहाँ पर अगर पिंग करते हो आप 30.30.30.100, ये पिंग होगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड। ये वाला इंटरफेस है, यहाँ तक पिंग हो रहा है, बट आई एम ट्राइंग टू पिंग फॉर राउटर 3 to 11111। देखते हैं पिंग हो रहा है क्या। पिंग 1.1.1.1 पिंग नहीं होगा बिकॉज both router different things. So how we can do that redistributions? So एक minute, let me see this redistribution one. So anyway we can directly configure it. So हमें क्या करना है? We need to redistribute our default route OSPF so that हम आपस में कम्युनिकेशन कर पाए। इन कंपनी आपको मल्टीपल रिक्वायरमेंट आ सकते हैं, बीजीपी टू डिफॉल्ट, डिफॉल्ट टू बीजीपी। रीपी तो बहुत कम यूज होते हैं, सो मोस्टली वी गेट फ्रॉम लाइक directly connected and static routes, advertise redistribute in the OSPA for BGP। मोस्टली इस टाइप के रिक्वायरमेंट आपको मिलेंगे। So how we can do that? We need to come in the here like virtual router, and here is the redistribution profile. Okay, so here first we need to create the redistribution profiles, and here we need to give the name.
नेम दे देते हैं फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट डैश री डिफॉल्ट डॉट री डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे नाम दे देते हैं। प्रायोरिटी इट इज ऑप्शनल और वी नीड टू गिव फॉर एग्जांपल 1 दे देते हैं। और बोल रहा है कि सोर्स टाइप, व्हाट इज सोर्स टाइप, किस चीज को आपको एडवर्टाइज करना है, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है ओएसपीए। तो हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड एंड स्टैटिक राउट जो हमने अभी ऐड किया उसको आप एडवर्टाइज कर दो किसमें, ओएसपीएफ में। उसके लिए OSPF. हमने रिडिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल बनाया। सोर्स टाइप इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर मान के चलो आप ओएसपीएफ टू स्टैटिक में कर रहे हो फॉलो ऑल्टो से, फॉलो ऑल्टो पर हम क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि डायरेक्टली कनेक्टेड और स्टैटिक राउट को ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट करना है। आपके केस में भी डिफरेंट भी हो सकता है, आपको ओएसपीएफ और रिप को एडवर्टाइज करना है, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है स्टैटिक एंड डायरेक्टली कनेक्टेड में। So depends upon the requirement. Here we are doing our default route like directly connected and static to this OSPF. यहाँ पर हम redistribute कर रहे हैं। OSPF filter we can keep as it is everything. यहाँ पर redistribute no redistribute, यहाँ पर आपको redistribute करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर redistribute select करना पड़ेगा। by default no redistribution रहता है। ओके, प्रायोरिटी हमने 1 दिया है, ऑप्शनल लेगा ही। ओके, दिस इज मैंडेटरी 1, सो हम यहाँ पर 1 दे दिया फॉर एग्जाम्पल। तो हमने क्या कर दिया, redistribution profile we have created. Now we need to come to the OSPF. Now come to the export rules. Here we need to add it. Here we need to select the whatever हमने redistribution profile create किया था वो हमने ले लेने का। और यहाँ पर as it is okay, कुछ डालते नहीं है, as it is रखते हैं and then we can click OK. So इससे करने से क्या होगा, जो भी हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड एंड स्टैटिक राउटर इज गोइंग टू बी रीडिस्ट्रीब्यूट इन द ओएसपीएफ। नाउ वी कैन कमिट आवर चेंजेस। तो सेम थिंग्स आपको कंपनी में भी मिलेंगे। हमारे में बीजेपी, हमने बीजेपी को किया है इन माई कंपनी। Default route is advertised in BGP and static route. ओके, सो वी हैव डन सक्सेसफुली एंड हमें इसके लिए सिक्योरिटी पॉलिसी भी चाहिए टू अलाउ द ट्रैफिक इन बिटवीन सोर्स इनसाइड टू आउटसाइड। यहाँ पर देखो कोई भी रूल नहीं है, बाय डिफॉल्ट 2 रूल है। सो बाय डिफॉल्ट इंटर जोन इज डिनाई, इंटर जोन इज डिनाई एंड इंट्रा जोन इज by default allow, means so same zone is allowed, different zone is not allowed. So we need to add here. And after these sections, I will explain all the things like what is rule type, what is universal, what is interzone, interzone. We'll see all the things, we'll see all the option here, whatever, delete, clone, override, revert, enable, everything हम इसके बाद देखेंगे। Okay, let me give for example inside to outside. What is our source? Source is the, हम वाइस वर्सा रखते हैं, ठीक है। डेस्टिनेशन में भी वाइस वर्सा रखते हैं क्योंकि हमें दोनों तरफ से कम्युनिकेशन चाहिए। तो इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, एंड वी कैन कीप एज ए एक्शन एज ए अलाउ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉग एट सेशन स्टार्ट, लॉग एट सेशन एंड। सो लॉग एट सेशन एंड मतलब होता है कि जैसे कि मान लो हमने जो रूल ऐड किया है, ट्रैफिक गेट अलाउ आफ्टर 3-वे हैंडशेक, डेटा गेट एक्सचेंज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, उसके बाद में हमें लॉग जनरेट हो जाएगा। यू गो ऑन द मॉनिटर एंड आपको लॉग्स वहां दिखेगा। दैट इज कॉल्ड लॉग एट सेशन एंड। मतलब क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, एंड कम्युनिकेशन में भी सक्सेसफुल हो सकता है, मे बी अनसक्सेसफुल हो सकता है, देन वो लॉग जनरेट होगा ऑन आवर फॉलो टू फाइल। दैट इज कॉल्ड लॉग एट सेशन। लॉग एट सेशन स्टार्ट मीन्स बिफोर, मतलब अभी डेटा एक्सचेंज नहीं हुए, 3 बैंड से कंप्लीट नहीं हुए, डेटा इन बिटवीन कम्युनिकेशन नहीं हुआ है क्लाइंट एंड सर्वर, उसी समय आपको लॉग जनरेट हो जाएगा, विच इज नॉट रिकमेंडेड टू यूज इन द प्रोडक्शन। सो वी जनरली यूज लॉग एट सेशन। सो ये मीनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंटरव्यू वगैरह में। हम क्या करते हैं, कमिट करते हैं। तो हमने रूल ऐड कर दिया, हमने स्टैटिक एंड डायरेक्टली कनेक्टेड राउट को हमने क्या कर दिया, ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो वंस इट इज सक्सेसफुल, अगर सब कुछ सही रहा, देन वी कैन सी द राउट 999 एंड 100 loop back, it will be received on the router 1.
ओके, देखते हैं कमिट कहाँ तक हो गया। कमिट हैज बीन सक्सेसफुली डन, एंड देन वी कैन कम टू द राउटर 1, राउटर 2, and enable it, wipe it out. यहाँ पर एक मुझे राउट्स मिला, OE2 मीन्स इट इज बेसिकली रिडिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब हुआ कौन सा, 30 30 30। इसका जो है 110 AD इज द value एडी 110, वैल्यू, या थोड़ा cost सा is और 1. वेट करते हैं। एंड 30 तो आ गया है अपने पास। एंड यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। और एक बार क्या करते हैं, क्लियर IP OSPF एंड स्टार करते हैं। हाँ, बट OSPF को भी रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना इसमें, डिफॉल्ट में। ये वो इस साइड के बोल रहे हो क्या? नो, हम हाँ, वन वन वे से कर रहे हैं, वी आर डूइंग फ्रॉम। इसको इसमें कर रहे हैं तो वो दोनों को जान जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक बार रीसेट करके, एंड देन विल चेक हियर। इसमें इतना ही करना रहता है, वी डोंट नीड टू मच थिंग्स हियर। सो अगर OSPF में आते हो तो ये सब चीजें हैं। रिड्यूसर्स फॉर फाइल हमें बनाना रहता है पहले, एंड इंटरफेसेस भी लेना रहता है क्या? ओके ओके ओके, वी कैन टेक इंटरफेसेज ऑल्सो। इंटरफेस कौन कौन सा रहेगा? And we can take interface like 1/2, loopback 5, loopback 6। ये सब चीजें उधर जाना है ना रिडिस्ट्रीब्यूट में। सो यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूशंस, एंड इस हमने हम लोग मिस कर दिया था VHV फिल्टर। फिर इस बार ट्राई करते हैं, यहाँ पर अपना ट्रबल शूटिंग भी हो जाएगा। दे आर द इंटरफेस है। फिर OSPF में हम लोग गए थे, और फाइल इसको यहाँ डिफॉल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, अलाउड रीडिस्ट्रीब्यूट डिफॉल्ट राउट। लेट्स इनेबल दिस ऑल्सो, अलाउ रीडिस्ट्रीब्यूट डिफॉल्ट राउट। सो हमने डाल दिया यहाँ पर मैट्रिक वगैरह, यहाँ पर एज इट इज रखते हैं। ठीक है, एंड देन एडवांस में कुछ नहीं करना रहता है, पर वन थिंग नीड टू अंडरस्टैंड हियर, रिजेक्ट डिफॉल्ट राउट। हमने यहाँ बोला है कि डिफॉल्ट राउट को रिजेक्ट करना है, जो कि वो उसके लिए वैलिड है जब उधर से फॉर एग्जांपल देज आर गोइंग टू बी एडवर्टाइज डिफॉल्ट राउट, उसके इसमें रिजेक्ट कर देगा। मतलब ये सब पीपल जो है राउटर 1 राउटर 2 का डिफॉल्ट राउट यहाँ पर रिजेक्ट होना चाहिए। बट यहाँ हमें कहीं कि अलाउ टू रीडिस्ट्रीब्यूट डिफॉल्ट राउट, यहाँ पर डिफॉल्ट राउट को भी रीडिस्ट्रीब्यूट के लिए हमने अलाउ कर दिया। एक बार कमिट करके देन विल टेस्ट इट, रीसेट करके देखते हैं, एंड देन वी कैन टेस्ट हियर। क्लियर IP OSPF, एंड यहाँ पर हम स्टार कर देते हैं सॉफ्ट रीसेट के लिए। ओके, सो ये कमांड नहीं चलता है क्या? क्लियर IP OSPF डाल के देखते हैं। ओके ओके, सो दिस कमांड इज नॉट वर्किंग। कमांड पता है क्या? क्लियर आईपी। देखो अभी हमने जैसे कमिट किया ना, तो डिफॉल्ट राउट भी एडवर्टाइज हो गया अपनी तरफ से। डिफॉल्ट राउट भी एडवर्टाइज हो गया। लुकिंग गुड। मतलब ये काम करते हैं, लेट्स ट्राई टू पिंग इट। बट हमारा गोल है कि हमें 99900 भी इधर शो होना चाहिए, बिकॉज हमें 30 30, ओके 556 ही तो ऑलरेडी एडवर्टाइज है इधर। ओके, लेट ट्राई टू पिंग दैट एंड देन वी कैन सी द रिजल्ट।
क्या रखता है। राउटर 1 से हम पिंग करते हैं राउटर 3 को, एंड वी कैन पिंग लाइक 99999। आई पिंगेबल, सो इट्स लुकिंग गुड। सो हमने क्या किया है, हमने डायरेक्टली कनेक्टेड जो कनेक्टेड है, और यहाँ पर जो डिफॉल्ट राउटर इट इज गोइंग टू बी एडवर्टाइज फ्रॉम डिफॉल्ट टू द ओएसपीएफ। ये चीजें हमने इसको, हमने पॉलोल्टो को बोला है कि तुम्हारा जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, मतलब 30 30 30.2, मतलब 30 वाला सबनेट, और यहाँ पर जो हमने डिफॉल्ट डाला है, डिफॉल्ट राउट पॉइंटिंग टू और 30 32, वो चीजें एडवर्टाइज कर दो ओएसपीएफ। दैट इज एडवर्टाइज एंड इट इज वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। अगर पिंग भी देखो हो रहा है, राउटर 1 से हम राउटर 3 को सक्सेसफुली पिंग कर पा रहे हैं, और इधर से भी पिंग करके देखते हैं टू 1.1.1.1, एंड इट इज ओके। सॉरी, 1.14 हो गया, सो कंट्रोल सी करते हैं। मीनवाइल हम क्या करते हैं, राउटर 2 से भी पिंग करके देखते हैं। सो ये देखो इन्फॉर्मेशन जो आते रहते हैं, नेबर 777 फ्रॉम लोडिंग टू फुल मीन्स वॉट एवर थिंग्स वी आर एडवर्टाइजिंग, इट इज गेटिंग। ओएसपीएफ का ब्यूटी क्या है, इट इज लिंक स्टेट आउटिंग प्रोटोकॉल से। जो भी चीजें इसमें सम स्टेट होता है, 7 6 7 और 8 स्टेट होता है। um, जब ओएसपीएफ आप डेप्थ में पढ़ोगे तो उसमें सीन होता है कि जैसे कुछ हम नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं, इट इज गोइंग टू बी रिसीव फ्रॉम पीयर टू द, फॉर एग्जाम्पल अगर आर वन और पोलो 2 के बीच में नेबर है, तो जो भी पोलो 2 पर हम एडवर्टाइज करेंगे इट इज गोइंग टू बी शेयर टू द राउटर 1, राउटर 2 पे करेंगे इट इज गोइंग टू बी शेयर टू द पोलो 2। सो दिस इज द बेसिकली ब्यूटी ऑफ ओएसपीएफ। नॉट ओनली ओएसपीएफ, चाहे आप रिप्लो ईएचआरपी हो, जो भी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल है। यहाँ से अगर हम पिंग करते हैं 9999999 को, या इट इज पिंगेबल। So we have successfully redistribute from OSPF, sorry, default route to the OSPF। यहाँ से हम पिंग कर सकते हैं 1.1.1.1, एट इज पिंगेबल। सो हमारा जो है गोल अचीव हो गया। दिस इज हाउ वी कैन रीडिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम डिफॉल्ट टू द ओएसपीएफ। कोई डाउट है यहाँ तक तो बोलो। नहीं नहीं, वो क्लियर। ठीक, इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको मिल सकती है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस इज अबाउट redistributions एंड अबाउट ओएसपी, अबाउट डिफॉल्ट राउट। और आपको कंपनी में 3 4 के रिक्वायरमेंट मिलेंगे, टू कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट राउट, टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउट, एंड टू कॉन्फ़िगर सम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स लाइक बीजीपी। मोस्टली आपको बीजीपी मिलेंगे, बिकॉज हम बीजीपी कॉन्फ़िगर करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर मान के चलो, लेट मी शो लिटिल बिट सो दैट आपको और आइडिया मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो इन योर कंपनी आपके पास मान के चलो यहाँ पर 2 SD वैन है। जैसे मान के चलो HD WAN 1, HD WAN 2 है। दिस इज योर HD WAN 1, HD WAN 2। दिस इज नॉट मैनेज बाय मे बी योर टीम, एंड और हमारा क्या गोल है कि व्हाट एवर द पीपल कमिंग फ्रॉम इन साइड, इट विल कम टू द फॉलो द फायरवॉल। फॉलो पर हमने डिफॉल्ट राउट देकर रखा है वीप आईपी, वर्चुअल आईपी ऑफ द, जो भी एक तरह से मान के चलो SSRP जैसा जो हम बनाते हैं इन बिटवीन टू डिवाइसेस। यहाँ पर SD WAN के बीच में यहाँ पर एक वीप आईपी बनता है, वो लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, द टीम हु मैनेज द SD WAN। वो वीप आईपी को हमें डिफॉल्ट में डालते हैं। सो जो भी ट्रैफिक है इट कम टू द फायरवॉल, देन इट इज गोइंग टू द SD WAN। SD WAN इज गोइंग टू बी एडवर्टाइज ऑन द इंटरनेट और मे बी अनदर साइट, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है। सो SD WAN का आपको पता ही नहीं क्यों यूज करते हैं, टू कनेक्ट ऑल द साइट टू ईच अदर। अगर कोई भी चीज इस साइट पर एडवर्टाइज करते हो, उस पुणे का साइट पर, इट इज गोइंग टू बी एडवर्टाइज टू ऑल द साइट। उसमें SD WAN आज के डेट में चल रहे हैं। ठीक है। और किसी किसी हम्म। कंपनी में क्या होता है कि मान के फॉलो टू फायर वाले, उसके बाद में क्या रहता है कि एक मान के चलिए यहाँ पर ट्रांसफर स्विच होता है। ठीक है, ट्रांसफर स्विच होता है, उसके बाद मान के चलो तुम्हारे पास 2 ISP, एक ISP टाटा का है, एक एयरटेल का है। वो लिंक को टर्मिनेट कर देते हैं ट्रांसफर स्विच पर, और इसके बाद में फिर इसको कनेक्ट कर देते हैं फायरवॉल को। इस तरह से भी रहता है। और ISP क्या करते हैं, आपको पब्लिक IP देंगे टू कॉन्फ़िगर इट। इस इंटरफेस से मान के कॉन्फ़िगर कर दिया, और आप क्या कर सकते हो, इसको एज वो बना सकते हो, क्या बोलते हैं,
SVI kinds of things, and you can send that traffic to the directly to the ISP as per the your design. बट मोस्टली कैसा रहता है कि डायरेक्टली इस तरह से हम नहीं सेटअप बनाते हैं. व्हाट वी जनरली डू, यहाँ पर SD-WAN लगता है, तो जो भी आपका ये अंडरले एंड ओवरले आपको पता है, जो भी अंडरले लिंक आपको आया, it is terminated to the transfer switch, then it is sent to the terminated to the SD-WAN. फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इंटरनेट का लिंक है, तो आपको आपने पहले कहाँ टर्मिनेट किया, स्विच पर, स्विच से कहाँ गया, SD-WAN पर गया. दूसरा लिंक मान के चलो MPLS का है, स्विच पर आया, स्विच से गया SD-WAN पर. ठीक है. और SD-WAN, दो SD-WAN के बीच में जो VIP है, वो हमारे इनसाइड पीपल के लिए गेटवे काम करेगा. और SD-WAN जो भी इंटरनेट का ट्रैफिक हो, MPLS का ट्रैफिक, इट इज गोइंग टू बी एडवर्टाइज ओवर ऑल द साइट एज पर द डिजाइन. इस तरह से भी कंपनी में डिजाइन रहते हैं. इट डिपेंड्स अपॉन हम्म, कंपनी टू कंपनी. ये हमारे यहाँ पे ये ऐसा एग्जाम्पल मतलब कनेक्शन है. ओके 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 ओके. सो इंटरनेट स्विच है, वहां से फायरवॉल को कनेक्शन गया है, फायरवॉल से राउटर्स. ओके ओके परफेक्ट. ठीक है. सो हमने कवर कर लिया OSPF एंड डिफॉल्ट राउटिंग. वी हैव आल्सो कवर रिडिस्ट्रीब्यूशंस. अब देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सिक्योरिटी पॉलिसी. सो सिक्योरिटी पॉलिसी देखते हैं, थोड़ा डेप्थ में देखेंगे, बिकॉज ये आपको डे टू डे एक्टिविटी में भी यूज होगा. तो देखो, बाय डिफॉल्ट टू पॉलिसी होता है सिक्योरिटी पॉलिसी, इंट्रा जोन एंड इंटर जोन. इंट्रा जोन मीन्स सेम जोन एंड इट इज अलाउ. इंटर जोन मीन्स different zone. Source and destination both are in different zone, that is called inter zone, and by default deny रहता है. अगर आपको इसमें मॉडिफिकेशन करना है, राइट, फॉर एग्जांपल जो भी डिफॉल्ट रूल रहता है उसको हम डिलीट नहीं कर सकते. वी कैन डिलीट, वी कैन मॉडिफाई, बट वी कैन ओवरराइड. अगर मान के आपको चलना है कि नहीं मुझे इसको भी अलाउ करना है, हाउ यू कैन डू दैट, यू नीड टू क्लिक दैट, क्लिक इन द ओवरराइड. इसे ओवरराइड करोगे, नाउ इन एक्शन वी कैन चेंज फ्रॉम डिनाई टू अलाउ. ओके. सो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एक्शन, डिनाई, अलाउ, ड्रॉप. इंटरव्यू में आपसे ही पूछते हैं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन deny and allow. Deny means it is going to be deny your packet, but logs will be generated. Logs will be logged. In case of drop, it is going to be drop in the first instance. Okay. We can say like, in case of deny, source will be notified. For example, हम अपने लैपटॉप से एक्सेस कर रहे हैं कोई डेस्टिनेशन, तो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा व्हाई इट इज डिनाइड. वहां पर कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगा. बट इन केस ऑफ ड्रॉप वी कांट सी दैट इंफॉर्मेशन. सो इन केस ऑफ डिनाई, source will get the information like why this traffic is denied. Generally को दिखेगा. इन केस ऑफ अलाउ आपको पता है. इन केस ऑफ ड्रॉप, इट इज गोइंग टू बी ड्रॉप ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो आपको वहां दिखेगा नहीं सोर्स को लाइक व्हाई इट इज ड्रॉप. रीसेट क्लाइंट मींस इट इज गोइंग टू बी, क्लाइंट इज गोइंग टू बी रीसेट द पैकेट. रीसेट सर्वर मींस सर्वर इज गोइंग टू बी रीसेट द पैकेट. इफ क्लाइंट इज, फॉर एग्जांपल ऐसे समझो, थोड़ा इसको डिटेल में डेप्थ में देखते हैं, इस लेवल से आपको मैक्सिमम जगह आपको नहीं मिलेगा, इस तरह से कोई नहीं बताता है. रीसेट क्लाइंट में मान के चलो ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है. तो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम 3 वे हैंडशेक होते हैं, आफ्टर 3 वे हैंडशेक देन अगर HTTPS बेस्ड एप्लीकेशन है तो 3 वे हैंडशेक के बाद में क्या होता है, SSL हैंडशेक होता है. देन एक्चुअल डेटा गेट ट्रांसपोर्ट, ये सोर्स जो है एज ए गेट मेथड यूज करके डेटा को मांगता है किसी डेस्टिनेशन से. तो अगर आप यूज करते हो रिसेट क्लाइंट, तो अगर ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में TCP हैंडशेक होने से पहले ही ये क्लाइंट रिसेट कर दा पैकेट को, इट इज नॉट गोइंग टू बिल्ड द रिलेशन. रिलेशन ही नहीं बिल्ड होगा तो डेटा कैसे ट्रांसफर होगा. Reset server means server is going to be reset the packet. If client is initially, for example, seen, it is going to be resetted. No, I don't want to make connection with you. So this is the meaning of reset client and server. Reset both client and server. It is going to be both client and server, both are going to be reset the packet. So if client send seen, server is going to be reset it. Client is also going to reset it. So it is not going to be build any connection, any TCP connection, any TCP system. तो ये सब चीजें आपको समझना, एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू समझना है, मतलब आपको आना चाहिए. डिनाई का मतलब क्या है, अलाउ का मतलब क्या है, ड्रॉप का मतलब रीसेट क्लाइंट, रीसेट सर्वर, रीसेट बोथ क्लाइंट एंड सर्वर. सो यहाँ तक कोई अभी क्वेश्चन है तो बताओ. नहीं. ओके. देन वी हैव लॉग इट सेशन स्टार्ट. मैंने आपको बता दिया था लॉग इट सेशन है, ये कंपनी में जनरली यूज होता है. ये लॉग फॉरवर्डिंग के लिए है. इफ यू आर यूजिंग लाइक सिसलॉग सर्वर एंड अदर रिमोट सर्वर, तो यहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जो कि हमारा जनरली पॉलो अल्टो में अगर पैनोरमा यूज कर रहे हो,
सो हमें पास एक लॉग कलेक्टर का कंसेप्ट होता है, तो फॉलोअर टू लॉग सेंड करेगा लॉग कलेक्टर को, लॉग कलेक्टर पाइनोरमा को भेजता है। तो उस तरह से डीप डिजाइन रहता है कंपनी में। बट अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पाइनोरमा वगैरह यूज नहीं होते हैं, वहां पर आप लॉगिंग के लिए सिसलॉग सर्वर अदर सर्वर यूज कर सकते हो। तो ये फायरवॉल क्या करेगा, इट इज गोइंग टू बी सेंड द लॉग टू द दैट लॉग सर्वर, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पर हमें 30 डेज का लॉग स्टोर करके रखना पड़ता है एटलीस्ट इन बिजनेस। इस तरह से हम कर सकते हैं। सो लॉग एट सेशन स्टार्ट, लॉग एट सेशन एंड। ठीक है। तो ये जनरली यूज होता है क्योंकि हमें जब ट्रैफिक की तो कंप्लीट हो या ना कंप्लीट हो फिर भी हमें लॉग चाहिए। इफ आर वर्किंग एज ए इंजीनियर और आपके पास सोर्स डेस्टिनेशन मिला, तो आप क्या करोगे, मॉनिटर में आके फिल्टर करोगे एंड वी ऑब्जर्व द लॉग। मे बी वी कैन टेक यूजर ऑन द कॉल और बोलेंगे कि भाई ट्रैफिक इंस्टेट करो, एंड वंस यूजर इंस्टेट द ट्रैफिक हमें लॉग दिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड लॉग एट सेशन। लॉग एट सेशन स्टार्ट मीन्स before data gets exchanged, before three handshake get completed, at the beginning itself, log should be generated. But we don't do these things in the product. Okay? So हम क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो ये चीजें हो गया आपका एक्शन के बारे में। ठीक है। और यहाँ पर आप जाकर मैं अलाउ कर देता हूँ। जिससे हमने अलाउ किया, देखो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दिस इज ओवरराइड। ओवरराइड मीन्स कोई ऐसा रूल है जिसको इट इज नॉट रिकमेंडेड टू डू मॉडिफिकेशंस, बट आपने स्टिल ओवरराइड किया। आपने उसमें मॉडिफिकेशन किया, मतलब जो भी एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन था आप उसको हटा करके अपने अनुसार आपने चेंज किया, दैट इज कॉल्ड ओवरराइड। ठीक है। तो हमने इसको ओवरराइड कर दिया। ठीक है। अगर इसको हटाना है, सो हाउ वी कैन डू दैट। अगर आपको हटाना है तो वी कैन क्लिक हियर एंड वी कैन क्लिक ऑन द रोल नंबर एंड वी कैन क्लिक ऑन द रिवर्ट। जैसे आप रिवर्ट करोगे, इट इज गोइंग टू बी रिवर्ट इट एंड मेक इट सिमिलर, जो भी हमें पहले जैसा था वैसा दिखने लगा, राइट। इसका मतलब हो गया आपका कि इस तरह से ओवर राइड रिवॉर्ड आपको समझ में आना चाहिए। और ये पैनोरमा में बहुत ज्यादा यूज होता है। ओवर राइड मतलब कि आपने एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन को भी रिवर्ट मार दिया। ठीक है। उसके बाद में मान के चलो ये रूल है, इसको आप डिलीट करना है, आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से डिलीट करोगे, रूल चला गया। सो दिस इज मतलब डिलीट। ठीक है। अब मान के चलो उसको वापस लाना है, बट हमने अभी कमेंट नहीं किया। हाउ वी कैन डू दैट, देयर इज ऑप्शन हियर, सेव चेंजेस, रिवर्ट चेंजेस। तो पॉलो वोल्टो में मैंने आपको बताया था देयर आर टू कॉन्फ़िगरेशन, कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कैंडिडेट मीन्स बिफोर कमिट, रनिंग मीन्स आफ्टर कमिट। तो जब हम कमिट कर देते हैं तो सेव इन द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और बिफोर कमिट कैंडिडेट कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। लिटिल बिट राउटर स्विच से डिफरेंट है। राउटर स्विच में हम क्या करते हैं कि जब हम क्या करते हैं कॉन्फ़िग टीम में जाकर के जब सेव कर देते हैं तो कहाँ चला जाता है, रनिंग कॉन्फ़िग। और उससे पहले कहाँ रहता है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी, जब हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं राउटर स्विच पर, तो जब उसको सेव रनिंग करते में हैं तो रहता स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। बिफोर से वो है। रनिंग में हाँ रहता है, राइट। यहाँ पर जस्ट हाँ उल्टा हाँ। है। ठीक है। तो अगर मान के चलो आपने रूल वूल डाला और आपने बिफोर कमिट करने से पहले गलती से डिलीट हो गया एंड आपने कमिट नहीं किया है, सो बिफोर, तो आप उसको वापस लाना पड़ता है। तो ये रिवर्ट चेंजेज, अगर जैसे आप रिवर्ट चेंजेस करते हो तो जो भी हमने चेंजेस किया था, अ, देखो वापस आ गया। जो भी हमने डिलीट कर दिया था गलती से बिफोर कमिट, उस रिवर्ट हो गया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिवर्ट। आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर ऐड का मतलब पता चल गया आपको, डिलीट का पता चल गया, क्लोन का मतलब क्या होता है। सो बिफोर क्लोन हम क्या करते हैं, दो तीन रूल ऐड करते हैं। ठीक है। दो तीन हम रूल ऐड करते हैं। परफेक्ट। तो हम क्या करते हैं, क्या रूल ऐड करते हैं, रूल ऐड करते समय कुछ आपको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो देयर आर टू सम टाइप रूल। तो कंपनी में जब आप रूल ऐड करोगे तो मोस्टली विल सी यूनिवर्सल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मीन्स आप सोर्स में कोई भी जोन रख सकते हो, डेस्टिनेशन में कोई भी जोन रख सकते हो। इन सोर्स वी कैन कीप एनी जोन लाइक इनसाइड आउटसाइड डीएमजेड, इन डेस्टिनेशन वी कैन कीप एनी जोन लाइक आउटसाइड इनसाइड डीएमजेड। दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। ठीक है। अगर आप इंट्रा जोन ऐड करते हो, मीन्स योर सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ शुड बी इन सेम जोन। अगर आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों सेम जोन में नहीं है तो आपका ये रूल वर्क नहीं करेगा। ओके। अगर आप ये रूल यूज करते हो इंटर जोन, इंटर जोन मीन्स सोर्स एंड डेस्टिनेशन आप डिफरेंट डिफरेंट जोन में रख सकते हो, देन दिस रूल विल वर्क, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। तो हम क्या करते हैं, तीन रूल ऐड करते हैं। तो यूनिवर्सल तो हमने रेडी ऐड कर दिया ऊपर। एक इंट्रा जोन रूल ऐड करते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं इंट्रा जोन डैश रूल, हमने नाम दे दिया। उसके बाद में हमने सोर्स में क्या ले लेते हैं, यहाँ पर इंटर जोन मतलब सेम जोन रहेंगे, इनसाइड
आपको डेस्टिनेशन में भी इनसाइड ही लेना पड़ेगा। 1 मिनट। ओके ओके ओके, सो इस केस में आपको केवल इनसाइड जोन ही अलाउ कर रहा है, मतलब सोर्स में हमें इनसाइड लिया, डेस्टिनेशन यहाँ पर हमें अलाउ नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखो ग्रे आउट है। तो हम क्या करते हैं, इस रूल को ऐड करते हैं, अलाउ। तो इस केस में क्या हो गया कि देखो, सोर्स जोन इनसाइड है, डेस्टिनेशन जोन इंट्रा जोन ले लिया आपने, आप यहाँ पर इंट्रा जोन ले लिया। एंड अगर आप दूसरा रूल ऐड करते हैं, एंड यहाँ पर इसको हम इंटर जोन डालेंगे, इंटर जोन डैश रूल। इंटर जोन रूल डाला हमने, और टाइप में हम क्या ले रहे हैं, इंटर जोन। देखो यहाँ दोनों चीज रेड दिखाने लगा। सोर्स, यहाँ पर आपको क्या लेना है, इनसाइड। डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड। अगर गलती से आप इंटर जोन रूल ऐड कर रहे हो और डेस्टिनेशन भी सेम ले रहे हो, लेट में डिलीट इट एंड शो यू। अगर हम यहाँ भी इनसाइड ही लेते हैं और ओके करते हो, तो हमें देखो एरर मिल रहा है, इंटर जोन रूल इज इनवैलिड, इंटर जोन रूल हैज सेम सोर्स एंड डेस्टिनेशन जोन, जो कि कभी नहीं चलेगा। So if you are adding the inter zone rule, we need to be at different zone। तो यहाँ पर आपको आउटसाइड लेना पड़ेगा कैपेसिटीज। तो इस तरह से हम दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटर जोन एंड इंट्रा जोन। ठीक है, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल, इंट्रा जोन, इंटर जोन, व्हाट इज टाइप ऑफ रूल, और आप एग्जाम जब दोगे वहां पर भी आपसे ये सब क्वेश्चन आएंगे, इफ यू गिव द एग्जाम ऑफ पीसीएनएस से और पीसीएनएस। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अ, ये हो गया। उसके बाद में मान के चलो आपको अगर क्लोन करना, फॉर एग्जाम्पल आपको सिमिलर टाइप का, इस तरह का, फॉर एग्जाम्पल इस तरह का आपको रूल ऐड करना है, और आप ये नहीं चाहते हो कि फिर से हम चीजें को फिर से सब कुछ टाइप करें, सब लिखे। सो फॉर दैट वी कैन क्लोन इट, इफ क्लिक क्लिक ऑन द क्लोन हियर, इट इज आस्किंग कि जो क्लोन कर रहे हो वो रूल कहाँ होना चाहिए, आफ्टर इनसाइड आउटसाइड रूल और बिफोर इनसाइड आउटसाइड रूल। अगर बिफोर करोगे तो ये रूल टॉप पे चला जाएगा, आफ्टर करोगे तो आफ्टर बाद रहेगा, उसके बाद रहेगा। सो क्लिक आफ्टर रूल, ये इनसाइड आउट एक न्यू न्यू रूल क्रिएट हो जाएगा, क्लोन इसका कॉपी, एंड इट विल कम आफ्टर रूल नंबर 1, क्लिक ऑन ओके। देखो एक रूल यहाँ पर आ गया, इनसाइड आउटसाइड 1। नाउ इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सोर्स में इनसाइड ना है, सोर्स में इनसाइड है, डेस्टिनेशन में इनसाइड नहीं है, केवल आउटसाइड है। यहाँ पर सोर्स में कोई मॉडिफिकेशन करना है, सोर्स एड्रेस में। सोर्स यूजर कब होता है, जब हम यूजर आईडी देखेंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ यूजर आईडी। अभी के लिए उसको इग्नोर करो। यहाँ पर सोर्स एड्रेस मान के चलो आपका 10 10 10 है, डेस्टिनेशन समथिंग है। तो आप इस तरह से रूल को क्लोन करके और आप अपने अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो आपको बार बार सारी चीज टाइप नहीं करना पड़ेगा, केवल आपको यहाँ रोल नंबर मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम डिस्क्रिप्शन मेंशन करते हैं कंपनी, क्या होता है कंपनी में, कि किसने रोल डाला, डेट, चेंज नंबर, एवरीथिंग मेंशन है। ऑडिट कमेंट में भी डालते हैं डिस्क्रिप्शन में कि रूल किस चीज के लिए है। अगर आपका बड़ा कंपनी है, रिस्ट्रिक्टेड कंपनी है, पेमेंट गेटवे, बैंकिंग सेक्टर है, तो वहां पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है। ऑडिट कमेंट में डालना पड़ता है कि भाई ये किसने डाला। फॉर एग्जाम्पल आपका नेम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, चेंज नंबर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में रूल के बारे में आ जाएगा कि वाई दिस रूल इज रिक्वायर्ड। क्योंकि कल के डेट में कोई और बंदा आता है, देन अगर वो रूल ओपन करेगा और मैनेजर या कोई भी आएगा ऑडिट वगैरह के लिए, ऑडिट टीम आएगी, क्योंकि इन्फोसेप को ऑडिट का राइट्स रहता है। तो दे हैव द रीड ओनली एक्सेस ऑफ द फॉलो आउट डिवाइसेज, और मे भी चेक मार डिवाइसेज जो भी आपके कंपनी में है, तो वो ऑडिट करते हैं। सो यहाँ पर सोर्स में आप जो भी डालो, ये देखो सोर्स जोन हो गया, सोर्स एड्रेस मतलब आईपी एड्रेस डालो, सबनेट डालो, नेटवर्क डालो, जो भी आप बना सकते हो। आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो और यहाँ से एड्रेस क्रिएट कर सकते हो। तो जब यहाँ पर एड्रेस फॉर एग्जाम्पल आपको सोर्स में डालना है कोई नेटवर्क, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, देयर ऑप्शन है। आप ही तो एफक्यूडीओ ले सकते हो। अगर मान के चलो सोर्स में कोई एफक्यूडीओ जनरली डेस्टिनेशन में रहता है, आईपी रेंज, आईपी नेट मास्क, ठीक है, तो यहाँ से आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपको ये सबनेट अलाउ करना है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेते हैं 10 का सबनेट, जस्ट फॉर एग्जांपल 10.10.10.10.0/24। ये देखो /24 का सबनेट आपका सोर्स में अलाउ हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पर आप नाम दे दो एज पर नेमिंग कन्वेंशन योर कंपनी। ये आईपी नेट मास्क आ गई। अगर आप आईपी रेंज रहते हो, यहाँ पर रेंज डिफाइन कर सकते हो, कितने रेंज तक आईपी आपको चाहिए। यहाँ पर आप एफक्यूडी में लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल www.facebook.com, यहाँ पर एफक्यूडी आ जाएगा। और आपके फायरवॉल पर डीएनएस कॉन्फ़िगर है तो facebook.com अगर करोगे तो वो रिजॉल्व करेगा। ठीक है, अगर आपका यहाँ पर फायरवॉल पर डीएनएस कॉन्फ़िगर है तो अगर ये रिजॉल्व पर क्लिक करोगे तो वो आईपी रिजॉल्व कर देगा कि facebook.com किस चीज में रिजॉल्व हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं यहाँ पर नाम देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल host_123, इसी तरह मैंने दिया। यहाँ पर ट्राई करते हैं रिजॉल्व करने का, तो ये देखो आईपी वर्जन फॉर नॉट रिजॉल्व, रिजॉल्व नहीं है बिकॉज वी डोंट हैव प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर डीएनएस हियर, तो हमें ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो इस चीज का मीनिंग होता है एड्रेस। आप यहाँ पर नेट मास्क, यहाँ पर सिंगल आईपी डाल सकते हो, नेटवर्क डाल सकते हो, यहाँ रेंज, यहाँ पर वाइल्ड कास्ट, ओके। या आप सोर्स में कॉल कर सकते हो। सोर्स यूजर हम देखेंगे जब व्हेन विल स्टार्ट कवरिंग आवर यूजर आईडी। सोर्स डिवाइस जनरली डोंट यूज इट। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट ऑफ योर सोर्स वाइल एडिंग सिक्योरिटी पॉलिसी। मैं आपको पूरा डिटेल है, पूरा डेप्थ में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में डेस्टिनेशन निगेट क्या है, ये चीजें हम देखेंगे इसके बाद में, थोड़ा एडवांस चीज है। डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन में आप यहाँ पर सेम चीजें, आउट्स। आप यहाँ एड्रेस बना सकते हो, एड्रेस ग्रुप बना सकते हो, रीजन डाल सकते हो। अगर मान के चलो आपको एड्रेस ग्रुप बनाना है तो आप यहाँ पर मल्टीपल एड्रेस बनाओ और एक ग्रुप बनाओ, सारे एड्रेस डाल दो। फॉर एग्जाम्पल एड्रेस 1 में आपने 10 का सबनेट अलाउ किया, एड्रेस 2 में आपने 20 का सबनेट अलाउ किया, एड्रेस 3 में आपने 30 की सबनेट अलाउ किया। उस चीज को एक एड्रेस ग्रुप बना करके डाल दो, और फिर एड्रेस एड्रेस ग्रुप को आप डेस्टिनेशन में कॉल कर सकते हो या सोर्स में कॉल कर सकते हो एज पर योर नीड। सो जितने भी वो डिटेल रहेंगे एड्रेस ग्रुप में, इट इज गोइंग टू बी अलाउ फॉर दैट ट्रैफिक, या वो ब्लॉक हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे, इट्स अप टू योर बिजनेस नीड और योर रिक्वेस्ट जो भी चेंज आता है, इंसिडेंट आता है। सो दिस इज अबाउट सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एप्लीकेशन, यहाँ पर एप्लीकेशन ये नहीं है, बट आप ग्रेनुलर कंट्रोल करना है तो आप एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपको अगर डीएनएस स्पेसिफिक अलाउ करना है तो आप यहाँ पर डीएनएस अलाउ कर सकते हो। सो इस केस में अगर सोर्स डेस्टिनेशन बिट टोरेंट ट्राई करेगा तो एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन डीएनएस अलाउ कर दिया। एंड पालो अल्टो नेक्स्ट जनरेशन लेयर 7 फायरवॉल, सो एप्लीकेशन बेसिस पर सिग्नेचर वो मेंटेन करेगा। अगर मान के चलो बिट टोरेंट भी वर्क करता है पोर्ट नंबर 53 पर, डीएनएस भी 53 पर वर्क करता है। सो अगर आपने एप्लीकेशन डीएनएस अलाउ कर दिया है और समवन इज फ्रॉम सोर्स इज ट्राइंग टू एक्सेस बिट टोरेंट, इट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउ बिकॉज it is going to be identified on the basis of application signature which maintaining the Palo Alto database, application database। ठीक है, ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अभी के लिए डिलीट कर देते हैं। ये समझो व्हाट द मीनिंग ऑफ सर्विस यू आर कैटेगरी, इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पर अगर एप्लीकेशन डिफॉल्ट लेते हो, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ टेलनेट अलाउ किया, टेलनेट, ठीक है, टेलनेट का कुछ यहाँ पर है नहीं। फॉर एग्जांपल कोई और ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल एचटीटी, या जैसे आपने सर्विस एचटीटीपी ले लिया, अलाउ कर दिया। ठीक है, और एप्लीकेशन यहाँ आपने डिफॉल्ट लिया है। सो एप्लीकेशन डिफॉल्ट मान के चलो अगर टेलनेट 23 पर वर्क करता है डिफॉल्ट, सो इट इज गोइंग टू बी अलाउड टेलनेट फॉर पोर्ट 23। मान के चलो आपने कोई कस्टम पोर्ट कॉन्फ़िगर किया है और वहां पर एप्लीकेशन डिफॉल्ट यूज किया है, दे एट दैट टाइम इट विल नॉट वर्क। वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कि तो सिलेक्ट रखो, सिलेक्ट कर। सिलेक्ट करके और यहाँ पर आप कस्टम जो भी पोर्ट बना रहे हो वो डाल दो। अगर आप ये नहीं करोगे इट इज गोइंग टू बी अलाउड टू एनीवन। नहीं। ठीक है, यही हो हाँ गया हाँ। आपका सर्विस का। सो यहाँ पर जनरली आप एप्लीकेशन डिफॉल्ट मीन्स अगर मान के चलो आप टेलनेट अलाउ कर रहे हो, एचटीटीपीएस अलाउ कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट यूज होता है, एचटीटीपी के लिए 80 यूज होता है तो 80 अलाउ हो जाएगा। और मान के चलो डेस्टिनेशन आपका 80 पे वर्क नहीं कर रहा है, आपका कम वर्क कर रहा है 4321, उस केस में अगर आप अलाउ कर रहे हो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो जो भी एप्लीकेशन डिफॉल्ट मीन्स डिफॉल्ट जो भी उनका पोर्ट है दैट इज ओनली गोइंग टू बी अलाउ। इफ यू आर यूजिंग कस्टम पोर्ट, फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट कस्टम सर्विसेज एंड देन वी नीड टू अलाउ इट here. Don't allow application, we can click select here or we can click any and we can allow your custom port। Okay, so this is about application default।
एक्शन मैंने आपको बताया, दिस इज अलाउ, डिनाई, ड्रॉप, रीसेट क्लाइंट, रीसेट सर्वर, आपको ऑलरेडी मैंने डेप्थ में एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज द प्रोफाइल सेटिंग। तो जब हम इसको कंटेंट आईडी एंड ऐप आईडी देखेंगे, तो यहाँ पर प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करते हो, सो वी हैव ऑप्शन लाइक एंटीवायरस, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन, एंटी स्पाईवेयर, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर एनालिसिस। तो इस केस में क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि जो सोर्स एंड डेस्टिनेशन है, इसमें हमारा इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। इफ एनी वन ट्राई टू एक्सेस मालवेयर मालिशियस यूआरएल, इट शुड बी ब्लॉक। सो आप यहाँ पर यूआरएल फिल्टरिंग का प्रोफाइल बनाकर डाल सकते हो। एंटी स्पाईवेयर, इफ एनी वन ट्राइंग टू डू सम जासूस साइट, जासूस टाइप्स ऑफ वर्क इन आवर बिजनेस, related to our data, related to our resources, उस केस में क्या कर सकते हैं हम, वी कैन कॉन्फ़िगर इन TS5 प्रोफाइल एंड वी कैन कॉल इनसाइड द सिक्योरिटी पॉलिसी। ओके, फाइल ब्लॉकिंग के लिए इफ यू वांट टू ब्लॉक if the people from this source communicating to destinations and if they are trying to use PDF file, it should be blocked. सो वहां पर आप फाइल ब्लॉकिंग प्रोफाइल बना के यहाँ कॉल कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड कंटेंट इंस्पेक्शन। एंड अगर सारी चीजें एक ही साथ चेक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगल पास पार्लर प्रोसेसिंग। सो एक ही गो में इट इज गोइंग टू बी चेक ऑल द थिंग्स वाट एवर कॉन्फ़िगर ऑन द सिक्योरिटी पॉलिसी। तो अगर सोर्स और डेस्टिनेशन इस रूल को मैच कर रहा है, और इस रूल में जितना भी चीजें आप कॉन्फ़िगर किए हो, इट इज गोइंग टू बी चेक ऑल द थिंग्स पार्लरली। दिस दैट इज कॉल्ड सिंगल पास पार्लर प्रोसेस। ठीक है, ये सब चीजें हम कंटेंट, जब हम कंटेंट इंस्पेक्शन देखेंगे, तो हम इस चीज को देखेंगे। जब हम अपना प्रोफाइल सेक्शन देखेंगे, कंटेंट आईडी, ये सारे कंटेंट हम्म। आईडी में आए। ठीक है, तो वहां पर आपकी तो प्रोफाइल बना सकते हो, ग्रुप भी बना सकते हो। ग्रुप बनाओ, कंपनी में जनरली ग्रुप कोड रहा है। कंपनी में हम क्या करते हैं कि सारे कंटेंट आईडी जो भी प्रोफाइल, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, मालवेयर, वाइल्ड फायर एनालिसिस, सबका हम क्या करते हैं, प्रोफाइल बनाकर उसको ग्रुप में कॉल कर देते हैं, और ग्रुप को ही डायरेक्टली सिक्योरिटी पॉलिसी में कॉल कर देते हैं। एंड दैट ग्रुप इज कॉमन फॉर एवरी रोल। उसके बाद जो भी हमारी कंपनी में रूल ऐड करेगा, इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड दैट रूल इन एवरी सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर इंस्पेक्शन पर्पज। तो वहां पर यूआरएल फिल्टरिंग का भी इंस्पेक्शन होगा, फाइल ब्लॉकिंग का भी होगा, वाइल्ड फायर एनालिसिस का भी होगा, मालवेयर का भी होगा, एंटी स्पाईवेयर का भी होगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी चेक ऑन दैट सिक्योरिटी पॉलिसी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, तभी नन कर देते यूजेज, ये सब चीजें आपको नहीं करता। दिस इज हाउ आपको सिक्योरिटी पॉलिसी जब ऐड करते हो, सो देज आर द ऑप्शन, आपको डिटेल में मैंने आपको बता दिया। नाउ वी हैव ऑप्शन लाइक, अगर आपको ऊपर नीचे करना है, टॉप डाउन, लाइक यू नीड टू मूव टू अप एंड, फॉर एग्जांपल इस रूल का आपको डालना है ऊपर, सो क्लिक दैट रूल एंड वी कैन मूव टॉप डाउन बॉटम। फॉर एग्जांपल वी कैन मूव ऑन द टॉप, सो इट इज गोइंग टू बी ऑन द टॉप। सो इंट्रा जो रूल हमारे टॉप पे चला गया। ठीक है, अगर मान के चलो इस पर सिलेक्ट करते हैं, इफ यू वांट टू मूव डाउन और बॉटम, मे बी डाउन, इट विल बी बॉटम इस, इंट्रा जोन के पहले आ जाएगा ना? या इसके इसके बाद आ जाएगा। ओके। ये हाँ। डिफॉल्ट है, इसके ऊपर आ जाएगा। अगर इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, ट्राई टू रिमूव डाउन बॉटम, बॉटम इट विल कम। So, ये रूल तो बाय डिफॉल्ट रहेंगे, व्हाट एवर वी आर कॉमन। एडिंग इट हाँ। विल कम आफ्टर दैट, इट विल कम। ओके, और इसके बाद कमिट भी करना पड़ेगा ना? रूल यस, इवन मूव भी यस, किया तो भी? यस, यस, वी नीड टू ओके। कमिट इट। जो भी चेंजेस कर रहे हो, नीड टू कमिट टू बी रिफ्लेक्ट इन द रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड। ठीक है, ओके। ओके। सी हो गया ऐड का, डिलीट का, क्लोन का, ओवरराइड का मैंने बता दिया, रिवर्ट का बता दिया, इनेबल। आप रूल को, फॉर एग्जांपल किसी ने इसको डिसेबल कर दिया है, आप डिसेबल भी कर सकते हैं इस रूल को। बिकॉज समटाइम्स हाँ। क्या होता है कि अगर रूल, अनवांटेड रूल हम ऐड करते हैं कंपनी में, हम्म। और अगर रूल मान के चलो आपने देखा वहां पर हिट काउंट नहीं दिख रहा है, और आपको इन्फोसिक ने बोला कि भाई आपके फायरवॉल में 10-15 रूल है जिसका हिट वगैरह है नहीं, हमने ऑडिट किया, एंड मे बी यू ऑडिट बाई योर सेल्फ, यू ऑडिटेड बाई योर सेल्फ, एंड आपने रियलाइज किया कि हिट काउंट जो है बहुत कम है ही नहीं, एंड दे आर जस्ट यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज। आपको पहले डिलीट करना है। डिलीट करने से पहले हम पहले डिसेबल करके रखते हैं। वी मॉनिटर फॉर सम डेज कि अगर कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, किसी ने कोई इंसिडेंट रेज नहीं कर रहा है, आफ्टर 1 वीक 2 वीक देन वी कैन डिलीट दैट। तो इस तरह से आप डिसेबल कर सकते हो। अगर इसको फिर मान के चलो आपने डिसेबल किया, बट यूजर स्टार्ट फेसिंग इशू, यू आर गेटिंग इंसिडेंट फॉर द सोर्स डेस्टिनेशन एंड इट मैचिंग दिस रूल, उस केस में आप क्या कर सकते हो इनेबल। कि इनेबल कर सकते हो।
ठीक है, ये डिसेबल इनेबल हो गया, रिवर्ट का होगा, ओवरराइड, क्लोन, एवरी ऑप्शन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। देन दिस इज द पीडीएफ। इसको क्या होता है, मान के चलो कि अगर आपको कल माइग्रेशन करना है फॉलो टू चेक पॉइंट, तो आपको रूल भी चाहिए, रूल का सारे डिटेल्स चाहिए, तो दैट आप सेम रूल वहां ऐड कर सकते हो कि तो मैन्युअली करो। और आज के डेट में एवरी वेंडर हैज द टूल्स टू माइग्रेट इट। और इफ यू आर डूइंग एनी माइग्रेशन, उस केस में क्या होता है कि हम वेंडर को कॉल पे लेकर के उनका हेल्प ले लेते हैं कि वी आर प्लानिंग टू माइग्रेट फ्रॉम Palo Alto टू चेक पॉइंट। तो चेक पॉइंट को आपको लेना पड़ेगा, अगर आप चेक पॉइंट टू Palo Alto करते हो, so Palo Alto will come on the call and we can discuss our install plan। ठीक है, इंस्टॉल प्लान डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या वे। ये हो गया। हम्म। तो मान के चलो ये रूल हमें एक्सपोर्ट करना है कि हमें दूसरे फायरवॉल पर भी चाहिए, तो वी कैन क्लिक हियर। अगर आप क्लिक करते हो तो देयर आर टू ऑप्शन, फाइल टाइप सीएसवी एंड पीडीएफ। पीडीएफ मतलब कि पीडीएफ में जनरली हम नहीं करते हैं, हम सीएसवी मतलब कोई एक्सेल फॉर्मेट में हो जाता है, एक्सेल, हाँ। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को बोलते हैं, एंड वी कैन प्लेस यानी वी कैन एक्सपोर्ट इट। जैसे हमने एक्सपोर्ट किया, इट इज आस्किंग फोटो, मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड कर लिया, उसके बाद में हमने यहाँ पर इसको ट्राई टू ओपन इन द एक्सेल। देखो ऑलरेडी एक्सेल में ओपन हो गया, तो एक्सेल में ओपन करते हैं। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो भी करना चाहते हो इसको, प्रॉपर टैगिंग्स और सारे डिटेल्स आपको दिख जाएंगे। जो भी अनयूज है उसको आप हटा भी सकते हो, इसको सिलेक्ट करके सबको। एंड अगर एक्सेल में जो भी एक्सपर्ट है, हम तो उतने एक्सपर्ट नहीं है, तो अपने अनुसार जो भी है, जो भी चीजें उधर था, आपको सारे देखो हम्म प्रॉपरली रूल यहाँ दिख गया। उसके अकॉर्डिंग हम इसको कहीं दूसरी जगह भी एक्सपोर्ट करनी, इंपोर्ट करना रहेगा दूसरे फायरवॉल पर, तो हम इंपोर्ट करके उसके अकॉर्डिंग हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। मोस्टली यूज होता है माइग्रेशन के टाइम। ठीक है, मोस्टली यूज होते हैं टाइम माइग्रेशन। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ द रूल। ठीक है। हाँ। उसके बाद देखो यहाँ पर हीट काउंट का ऑप्शन है, द हीट काउंट ऑप्शन। सो हीट काउंट मतलब कि कितने बार ट्रैफिक हिट हुए, दैट रूल इज हिट बाय द ट्रैफिक। लास्ट हिट, फर्स्ट हिट, ऐप सीन, हीट काउंट है। आप इसको रीसेट भी कर सकते हो, या आप डायरेक्टली कर सकते हो रीसेट हीट काउंटर। यहाँ से आप ऑल रूल का हिट हिट काउंट रीसेट कर सकते हो, या अगर पर्टिकुलर किसी रूल का करना है तो आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो। तो ये काउंटर जो है, अगर हम रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, देखो जीरो हो गया। फिर जब दोबारा हम ट्रैफिक इनिशिएट करेंगे देन इट विल हिट इट, यहाँ पर हिट काउंट दिखेगा। तो हिट काउंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द रूल। ठीक है, ये रूल को अगर देखना चाहते हो कि रूल आपका यूज में है नहीं यूज में है, उस केस में हिट काउंट प्ले वाइटर हो, उस केस में आप हिट काउंट का हेल्प ले सकते हो। आप रिसेट भी कर सकते हो ऑल को भी या एक साथ। क्या होता है कभी कभी कि आपको पता करना है कि हमने 10 रूल ऐड किया है, और हमें ये पता करना है कि 10 रूल में से कितने रूल ऑन यूज है। तो फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर एक ऑप्शन है हाईलाइट ऑन यूज रूल, आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि इतने सारे रूल जो हमने ऐड किया है। क्योंकि हमने अभी कमिट किसी को नहीं किया है, एक कमिट किया था इसको, और उसका मैंने हिट काउंट रिसीट जीरो कर दिया है। तो बता रहा है कि ये सारे रूल ऑन यूज है, ये सारे रूल ऑन यूज है। ठीक है, यूज में कौन सा है, ये दोनों है। ठीक है, इस तरह से हम्म आप चेक कर सकते हो कि हाउ मेनी रूल आर यूज और हाउ मेनी रूल आर ऑन यूज। इस तरह से आप Palo Alto में चेक कर सकते हो। दिस इज वेरी, Palo Alto का वेब यूआई मुझे बहुत पसंद है इस कंपेयर ऑफ चेक पॉइंट। चेक पॉइंट इज ऑल्सो गुड, बट इट इज वन ऑफ द टॉप फायरवॉल, सबको आता नहीं है वो। बट Palo Alto की क्या खासियत है कि एवरीथिंग इज ऑन वन प्लेस। इन चेक पॉइंट वी हैव डिफरेंट थिंग, एसएमएस, गेटवे एंड, तो इसीलिए आज की डेट में सारे कंपनी माइग्रेटिंग फ्रॉम चेक पॉइंट टू Palo Alto। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें चेंजेज हमको मिलेगी, मे बी मार्केट इसका ज्यादा बढ़ जाएगा एट द कंपेयर ऑफ चेक पॉइंट। ठीक है, हाल चेक पॉइंट इज ऑल्सो गुड, वेरी वेरी गुड। बैंकिंग सेक्टर में चेक पॉइंट यूज होता है मोस्टली। सबसे ज्यादा R&D टीम जो पैसा खर्च करती है वो चेक पॉइंट के, चेक पॉइंट R&D टीम स्पेंड सो मेनी मनी एट द कंपेयर ऑफ अदर वेंडर। हम्म। ये देखो, उसके बाद में रीसेट ह्यूज, उसके बाद में लास्ट वन ही है, इसको देखते हैं लास्ट। उसके बाद हमारा ये चीज खत्म हो जाएगा टॉपिक्स। टेस्ट पॉलिसी मैच, इसको पहले हटा देते हैं। व्हाट द मीनिंग ऑफ टेस्ट पॉलिसी मैच, इस पर क्लिक करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रूल ऐड किया, आपके फायरवॉल पर एलईडी रूल है, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 रूल ऐड किया है। आपने हमने फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, यहाँ से जा करके हम
रिबॉट चेंजेज करते हैं, रिबॉट चेंजेज करते हैं। ठीक है, तो हमने जो भी चीजें किया वो हमारा एज इट इज पहले जैसा आ गया। हमने बाकी चीज को रिवर्ट कर दिया, जो भी हमने कमिट से पहले मॉडिफाई किया था, कमिट से पहले जो भी हमने चेंज किया तो उसको हमने रिवर्ट कर दिया। मान के चलो कि आपके पास मल्टीपल रूल एडेड है और आपको किसी ने इंसिडेंट रेज किया और आपको सोर्स आईपी दिया, डेस्टिनेशन आईपी दिया, एंड आपको रूल एडेड करने से पहले इफ यू वांट टू चेक, ओके वो सोर्स डेस्टिनेशन के लिए क्या कोई रूल पहले से है क्या, हाउ वी कैन चेक दैट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर, यहाँ के लिए हम करते हैं सोर्स लेते हैं 10 10 10 1 फॉर एग्जाम्पल के लिए, या 11 11 1 लेते हैं टेस्ट पॉलिसी में। और मान के चलते व्हाट इज सोर्स लेते हैं 1.1.1.1। सोर्स पोर्ट मुझे नहीं पता है, डेस्टिनेशन हम मान के लेते हैं 9.9.9.9। डेस्टिनेशन पोर्ट हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्रोटोकॉल में हम यहाँ पर आईसीएमपी ले लेते हैं। आपको अगर जोन पता है, पीपल कमिंग फ्रॉम इन साइड, सोर्स इन इनसाइड का। साइड का पार्ट है एंड डेस्टिनेशन जो है आउटसाइड का पार्ट है, तो इस तरह से आपको सारी डिटेल पता है, देन वी कैन एजुकेट इट। सो वंस यू एजुकेटेड, इट इज शोइंग देखिए ये रूल जो है हमें दिख गया, ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए आपके पास ऑलरेडी एक रूल है एंड द रूल इज इन साइड टू आउटसाइड, जो कि हमने ये वाला ऐड किया था, रूल नंबर 1। इस तरह से आप बता सकते हो कि दिस ट्रैफिक के लिए ऑलरेडी हमारे पास रूल है। We just need to take user on the call and we can monitor the logs and absorb it accordingly. So this is how test policy match look like. So I have explained all the option in security policy in depth. तो इससे ज्यादा आपसे इंटरव्यू में कोई नहीं पूछ सकता है, अगर पूछता है तो डेफिनेटली वी कैन क्रैक एन इंटरव्यू। अगर आपको सिक्योरिटी पॉलिसी से या कंपनी में काम भी करते हो, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू क्रैक इट। ठीक है, हम्म। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं, क्लियर है। ओके, सो हमने आज का कंटेंट कवर किया है। आज थोड़ा सा 10 15 मिनट पहले मुझे उसे भी बंद भी करना था। सो यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है, नहीं। ओके परफेक्ट। सो उसके बाद में हम आगे चल के फिर देखेंगे, इसमें हम सिक्योरिटी पॉलिसी में और कुछ रहता है तो आई विल ट्राई इट, एंड देन इसके अकॉर्डिंग जो भी कंटेंट है हम कवर करेंगे एवरीथिंग्स इन डिटेल्स इन डेप्थ। फिर हम पैकेट कैप्चर भी देखेंगे, पैकेट कैप्चर थोड़ा बाद में आएगा, इट विल कम लेटर। सो पैकेट कैप्चर यहाँ से हम देखेंगे, पैकेट कैप्चर हम को ट्रबल शूटिंग करेंगे एंड एट टाइम्स विल ट्राई टू डू पैकेट कैप्चर हियर एंड वी कैन ऑब्जर्व ऑल द थिंग्स। एंड देन हम नेटिंग देखेंगे। जनरली सिक्योरिटी पॉलिसी के बाद नेट ही आता है, तो नेट में देखेंगे कितने टाइप के नेट होते हैं, सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, विल ट्राई टू सी विद एग्जांपल। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन डीप टाइप, क्योंकि मुझे नेट नेट मुझे बहुत अच्छे से, नॉट ओनली नेट, इन Palo Alto, in Checkpoint also. So I will try to explain in details and depth. एंड उसके बाद में ये मॉनिटर सेक्शन के जितने भी चीजें लाइक ग्लोबल प्रोटेक्ट, जब ग्लोबल प्रोटेक्ट करेंगे तो वहां पर आएगा। से मॉनिटर जो भी आपका लाइसेंस है, अगर फायरवॉल है जो लाइसेंस, उस केस में आपको अगर ट्रैफिक लॉग देखना है तो यहाँ देखोगे, यूआरएल फिल्टरिंग का लॉग देखना है यहाँ देखोगे, ग्लोबल प्रोटेक्ट का यहाँ देख सकते हो, यूजर आईडी का यहाँ देख सकते हो। सो देज विल बी वर्क वंस वी हैव लाइसेंस ऑफ फायरवॉल। इन आवर केस वी नीड टू सी हियर, इस सेशन ब्राउजर में हम देखेंगे, बिकॉज आवर फायरवॉल इज नॉट लाइसेंस फायरवॉल, बट हम ऑलमोस्ट ऑल कंसेप्ट ऑल द लैब विल परफॉर्म इट विदाउट एनी प्रॉब्लम। एंड पॉलिसी, पॉलिसी के अंदर ये सब कुछ देखेंगे, लाइक डिक्रिप्शन, वंस वी स्टार्ट डूइंग एसएसएल डिक्रिप्शन, उस केस में हम इसको देखेंगे। एंड ऑब्जेक्ट में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एड्रेस, एड्रेस ग्रुप, रीजन। सो जैसे जैसे हमारा जरूरत आएगा, लाइक कस्टम ऑब्जेक्ट, यूआरएल फिल्टरिंग, स्पाईवेयर, ये सब चीजें जैसे हमारे कंटेंट आईडी में आएगा, विल सी ऑल द थिंग्स इन नेटवर्क। दे आर द पार्ट ऑफ IP6, वंस वी कवर IP6 ये सब IP6 में आ जाएगा। ग्लोबल प्रोटेक्ट जब कवर करेंगे तो ग्लोबल प्रोटेक्ट में आ जाएगा। These are the virtual router we are already using. This is the VLAN zone interface we are already using. DHCP, ये DHCP है। अगर क्या होता है कंपनी में कि कुछ क्लाइंट के लिए डायरेक्टली हम क्या करते हैं, फायरवॉल इज द गेटवे होता है। मान के चलो आपके कंपनी में भी ऐसा कोई रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा इन्वायरमेंट होगा जहां पर मान के चलो ये पीसी है और ये स्विच से कनेक्टेड है और स्विच से फायरवॉल कनेक्टेड है और डायरेक्टली उस पर इंटरनेट पर जा रहा है। तो आपने इस पीसी के लिए गेटवे कौन सा यूज किया, फायरवॉल यूज किया इंस्टेड ऑफ कोर स्विच।
जनरली कोर स्विच पर हम क्या क्रिएट करते हैं, एसबीआई, राइट। उस केस में क्या होता है कि हम अगर इस बंदे को डीएचसीपी से आईपी चाहिए तो उस केस में हम डीएचसीपी रिले यूज कर सकते हैं, उसको हम पॉलो पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और डीएचसीपी रिले क्या होता है आपको पता ही है, डीएचसीपी रिले कि अगर हाँ आपका डीएचसीपी सर्वर कहीं और होस्टेड है और डिफरेंट विलेन में है और डिफरेंट विलेन को आईपी चाहिए फ्रॉम दैट, सो फॉर दैट वी डीएचसीपी रिले, राइट। परफेक्ट। सो ये सब चीजें जो हमारा अकॉर्डिंग टू आवर कंटेंट और सिलेबस विल सी ऑल द थिंग्स इन डिटेल्स एंड डेप्थ। ओके।